अपने तो निकल जाती है, कई बार कोई कारण हो गया सानू टाइम दिता सी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਦੋਂ कोई भी बंदा नहीं कर रहा है प्रशासन उदों तो सुपरीडेंट आएंगे उन्होंने चौकीदार ने आ जाएंगे सुपरीडेंट साहब ने भेजा नमस्कार सर, मैं मंतूर चौधरी। ये देखिए आइसक्रीम वाले भाई जो रेडी लगाते हैं उनकी भी चकी जाती है। वो जो डब्बा होता है जो बीच आइसक्रीम रखा जाता है वो तो उनको दे देते हैं, बाकी ये खाली डाला उनका जो चक के लाके ये जो क्रेट देख रहे हैं आप, क्रेट जो रखी हुई है ये क्रेट अलग की तरह का होता है। ये रंग दिए हैं कि ताकि पहचान ना सके कि किसी रेडी फड़ी वाले को हो चाहे किसी जो फ्रूट लगा रहे हैं उनका। ये है रेडी फड़ी वाले सामान आप लोगों का है, ये सारे सामान क्रेट भी हमारा है सर। इसमें फ्रूट आते हैं, ये चक के लाते हैं। देखिए इतना अच्छा से फूल सजाए हुए हैं। ये आइसक्रीम वाले के खाली डाला है, वो भी बेचारा रो रो के घर भाग गया होगा। जब उसके सामान ही नहीं दिए तो रोजगार कैसे करेगा, अपना पेट कैसे पालेगा सर। ये चक के यहाँ पे फूल सजाया गया। गवर्नमेंट मान लीजिए एक तरफ से कह रही है अपना रेडी लगाओ फड़ी लगाओ, एक तरफ से चक के लाके उसी को अपना ऑफिस में सजा दे रही है। फिर कैसे हम लोग जिएंगे सर। ये मान लीजिए हम ही लोग का सामान है। इधर भी ले लो सर, इधर ले लो, तंदूरी इधर आ गया। अच्छा तंदूर का भाई की ना की है तो अज ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ म्यूनसिपल कारपोरेशन 'ਚ इस तरह के हालात क्यों पैदा हो रहे कि ਇੰਨੀ तादाद 'ਚ ਤੁਸੀਂ आके मतलब म्यूनसिपल कारपोरेशन के बाहर बैठे हो, की गल है ਭਾਜੀ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਰੇੜੀਆਂ ਔਰ ਫੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ। ਵਕਾਇਦਾ ਟਾਊਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਟਾਊਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਲੀਗਲ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 993 ਕਾਰਡ ਪੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡੇ 3-4 ਵਾਰ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 20,000 ਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। 20,000 ਲੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕਾਇਦਾ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਭੇਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਗਈ ਹੈ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅੱਡੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਵਕਾਇਦਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਓ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ 10 ਵਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ 1:45 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਇੰਨੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਭਾਜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਕਾਇਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, 993 ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਸੀਦ ਕੱਟੋ, ਮੰਥਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਥਲੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਖੜ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪਰਚੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਹੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਰਚੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚੀ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣੇ ਆ। ਕੀ ਭਾਜੀ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ? ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਰੇੜੀ ਸਰਕਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਧਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 10 ਫੁੱਟ ਇੱਧਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਸਰਕਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਕਰੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਭੀੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਜਾ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਅੱਡਾ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਲਾ, ਹੌਲੀ 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 ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਭੀੜ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਆ ਕੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ 5 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 10 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਚੱਕ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਚੱਕ ਦਿਓਗੇ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੋਗੇ। ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਰੇੜੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਇਨਲੀਗਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ? ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਹੱਥ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂਗਾ? ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਦਿਨ 50 ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ, ਔਰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਦੁਖੀਆਂ, ਉੱਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਵਫਦ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਚੜੀ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਫਲ ਫਰੂਟ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਰੌਂਠੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਢਾਬੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, 10-10 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ 250 300 ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30-40 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਥਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਉਧਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। 2 ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਰੇੜੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਰੋਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਉਹ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਹੀ ਖਾਣਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਰੇੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੇੜੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਉਹ ਰੇੜੀ ਤੇ ਖਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 30-40 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਲਿਬੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ ਭਾਜੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਾਈਏ, ਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਾਈਏ, ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਸਸਤੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ 200 ਵਾਲਾ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭੀੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ
80-90% ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸਟਾਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਡੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਮਸੀ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਜਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਅਨਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਨਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿਓ। ਕੀ ਭਾਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਪਿਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਿਆ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਉਹ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 45 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅਨੋਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਭਾਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਧਰਨਾ ਕਦੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਰੇੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਕਵਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਰੇੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਚਕਵਾਊਗੀ। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रभु चौधरी है, मैं जूस के काम करते हैं। कितने सालों से काम? आज 30 वर्ष हो गया, 32 वर्ष जूस के काम करते हुए। जी। बाकायदे म्यूनसिपल कमेटी के आज 5-6 साल पहले सर्वे किए। सर्वे में एक बार 2400 आदमी के किए, फिर वहाँ पे कोई एमसी कार्ड छाट लगाया कि इतना बंदा नहीं है, इतना बंदा, वाकई में गलत थे। ये घर के 5-5 आदमी सर्वे हो रहा था, करा रहे थे। सारी काट छाट करने के बाद ये सेंट्रल द्वारा टाउन बिल्डिंग कमेटी की गठन किए, उसमें हम लोग को लेटर दे के जो मेंबर थे उनको बुलाया गया। बुलाने के बाद उसको तय किया गया कि ये शहर में कैसे रेडी लगे जो हम लोग को फल फ्रूट आदमी को मिले सही रेट पे। सब करने के बाद उस समय उमा शंकर कमिश्नर थे, तो सारी जांच प्रचार करने के बाद अपने सीरियस से जगह जगह हर रेडी पे जाके चेक करवाए कि हाँ वाकई ये सही है कि नहीं है। तो जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है वहाँ से हटा के, रोड चलते हैं वहाँ से हटा के 10 फुट पे हुआ कि 10 फुट पे लगाओ। 10 फुट पे हमको खड़ा के उसके बाद हमको कार्ड दिया गया। कार्ड बनाया गया तो एक कार्ड ग्रीन कार्ड के बनाया गया कि चलते फिरते बेचेंगे, और एक जो हम लोग को दिया गया कि अस्थाई बचेंगे, और जो उनका फीस भी रखा गया उस समय। फीस रखा गया था 3 महीने के एक 1500 रुपये, जो साइड में काम कम है, और जो मेन मार्केट में थोड़ा कम है उनका 2000 रुपया 3 महीने के, और जो मेन मार्केट में बिल्कुल आप बिल्कुल सही है कि आप कह रहे हो कि उस टाइम कमिश्नर उमा शंकर गुप्ता हाँ, थे, जो बकायदे आज डायरेक्टर भी हैं। हाँ, डायरेक्टर, तो सब कुछ जानते हैं, सारे अधिकारी भी जानते हैं, यहाँ कोई नया अधिकारी नहीं है। हाँ, नहीं है।
सभी को पता है कि वो कानून प्रक्रिया स्टार्ट की थी, लेकिन हाँ। आज हालात क्या, आप लोगों के हालात के ऊपर आज हालात इस मौके कैसे सिस्टम चल रहे हैं सर, आज कैसे काम कर रहे हो आप? सर आज इस ये हालात पे पहुंचे हैं हम कि हमारे को कोई सूचना नहीं दिया गया और हमारा सामान चक के ले जाके और इकट्ठा कर लिया जा रहा है और उसको तोड़ दिया जा रहा है। जो फल फ्रूट है वो कब्जा में अपने लिया जा रहा है और वो अस्पताल ले जाके गौशाला में खिला दे रहे हैं, कोई अपने घर ले जाके बांट के खा रहे हैं। और हमारे वो थप्पड़ हमारा बहुत रोज यहाँ तो इस कंगाल पे आ गए हैं कि अब हमारे को एक ही रास्ता, अगर नहीं लगेगी तो हमको आत्महत्या करने के इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है ना। क्योंकि कल कमिश्नर रेडी चक रहे थे सुपरडेंट साहब ने, तो हम वहाँ पे जाके विरोध किए तो बोले कि आप कमिश्नर साहब से बात कीजिए। कमिश्नर साहब ऑर्डर दिया हमको चकने के लिए। जब कमिश्नर साहब डेट दिया है 10 बजे मिलने के लिए और कमिश्नर साहब ऑफिस छोड़ के फरार हैं। अब आप इसको कैसे देखते हो कि अधिकारी आपसे बात करने नहीं के लिए करना टाइम चाहते देता है? हैं। आप लोग टाइम बात करने के लिए आते हो, लेकिन यहाँ पे वो अधिकारी हमसे बात नहीं करते हैं। क्यों? वो बोलते हैं कि सब भाग जाते हैं, बताते भी कारण भी नहीं बता रहे हैं हमसे कि हम बात नहीं करेंगे। बोलते हैं ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है, बोल रहे हैं 2020 का आदेश है। तो जब 2020 का आदेश है तो 2 साल कहाँ थे? लेकिन क्या आपको लगता है कि आत्महत्या ये किसका एक रास्ता है? तो चल आत्महत्या हम संघर्ष कर रहे हैं, अगर नहीं देंगे कल को कोई जान मान के नुकसानी होगी तो इसका तो म्युनिसिपल कमेटी होगी जवाब दे। अगर हमारा कोई नुकसान होती है या हमारे कोई आदमी अब इसमें से कोई अगर नहीं कर पाता है, नहीं सहन शक्ति होती है, कुछ कर बैठता है तो इसका प्रशासन होगी जिम्मेवार, म्युनिसिपल कमेटी होगी जिम्मेदार। पहले भी जो कमेटी पर बार बार आरोप लगता था कि रेडी फड़ी से अवैध वसूली होती है, हाँ। इसको आप मानते हो कि अवैध वसूली करते थे अधिकारी? वसूली करते थे, वसूली करते थे, मनमानी करते थे, तभी है का सारा कुछ हुआ। सर। आज मैं 5 रोज पहले जी। जो फ्री हाल सुपरडेंट हैं उनको फोन किया कि देखो बदनामी हमारी हो रही है और ये बीच रोड पे बेच रहे हैं सामान और ये हमारे टाउन बिल्डिंग के अंदर नहीं है, ये बाहर से आके बेच रहे हैं, इनके सामान उठाओ। तो सुपरडेंट साहब बोले कि हम उनका नहीं उठाएंगे, जब उठाना होगा तो आप जाके कमिश्नर साहब से मिलिए, जब कमिश्नर साहब कहेंगे तो हम जाके उठाएंगे उनको। तो मैं बोला कि उनकी सामान उठाने के लिए कमिश्नर साहब ऑर्डर नहीं दिए और हमको कार्ड दिए हैं, तो हमारे रेडी उठाने के लिए आपको कमिश्नर साहब भेज दिए, उस पर वो कोई जवाब नहीं दिए, है ना। आज कमिश्नर साहब ने आपको टाइम दिया था? हाँ टाइम दिए थे, उनके पीओ ने टाइम दिया था कि आप 10 बजे आइए, कमिश्नर साहब से मिलिए, अपना बात रखिए। कल मैं उमा शंकर सर के पास गए थे जो डायरेक्टर हैं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आप और बताइए कि अभी भी इतनी तादाद में आप लोग आए हो, क्या अभी भी पार्शियलिटी चल रही है? क्या अभी भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, क्या अभी भी कुछ रेडी फड़ी वालों के साथ भेदभाव है? अभी भेदभाव है, बहुत जगह रेडी देख के नहीं उठा रहे हैं। अच्छा। जो एमसी लोग हैं उनके मान लो एमसी का सिफारिश है। अच्छा। और वो लगा रहे तो उस रेडी को हाथ नहीं लगा रहे हैं। मतलब एरिया का जो हाँ। पार्षद है उसकी हाँ उसका सिफारिश, उसका रेडी नहीं लग रही है, कई जगह दिखा देंगे, आज भी है उनकी रेडी नहीं उठ रही है। हम देख रहे हैं नहीं उठ रही है रेडी, उनको क्या पता है। ठीक है, पार्शियलिटी चल रही है। हाँ पार्शियलिटी चल रही है, बिल्कुल चल रही है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल चल रही है, वो रेडी काउंसलर की चल रही है। हाँ नहीं उठ रही है वो रेडी, वो रेडी नहीं उठ रही है, जो बीच रोड पे है उनकी नहीं उठ रही है, बिल्ली भगाता है तभी नहीं उठ रही है। साल से लाइसेंस लिया हुआ है, लाइसेंस बनने के बावजूद आपकी रेडी उठाई जा रही है। आज 7 साल पहले हमको दिया गया जब उमा शंकर जी थे, जी। और उसके बाद तो कभी उठाता था, लेकिन ऐसे नहीं उठाया था, जो आगे जाता था उसको बोल के छोड़ दिया जाता था। लेकिन आज हालात इस नतीजे पे पहुंची है कि कोई सामान दे के आज 45 दिन हो गए, कोई किसी का सामान नहीं दे रहे हैं। और हमारा मान लो वाटर में से वो चका गया है, मैक्सी चकी गई है, तो हम निकल जाते हैं तो मैक्सी है नहीं, वहाँ से गुम हो गए, कोई रसीद नहीं दे रहे हैं। सामान आपका गया है? हमारी मशीन गई तो मशीन हमारी वहाँ नहीं है, गुम हो गई है वहाँ से। अच्छा, मशीन गायब? हाँ मशीन गायब हो गई है, वहाँ पे है नहीं, सामान खत्म है। दोबारा लगाना पड़ेगा तो नया खरीदना पड़ेगा। नया अब फिर हमारा अगर अड्डे बनते तो हमारा सामान कामयाब नहीं है, तोड़ दिया गया है या तो गुम है, हमारे को फिर दूसरा लेना पड़ेगा, गायब कर दिया जाता है। हमने एक चीज और सुनी है कि जो अक्सर क्या होता है कि नई रेडी जाती है तो लोगों को पुरानी रेडियां भी मिलती है। वो कोई चीज़ नहीं मिलती है, जिसको नहीं मिलती है वो नहीं लेके चल जाता है, पुरानी रेडी छोड़ जाता है, क्योंकि उसका कोई पर्ची नहीं मिला, कोई नंबर नहीं लगा उसका। हमारा सामान ले गए मान लो, तो हमारा सामान पे तो नंबर लगना चाहिए, ये प्रभु का है, लेकिन उस पर नंबर नहीं लग रही है, और वैसे गाड़ी पर से खड़े उठा के फेंक दिया जाता है और वो टूट जाता है, और वो आगे ठीक कराते हैं, या तो नया रहता है, बचा रहता है तो दूसरा आदमी ले जाता है। अगली रणनीति क्या होगी अब आपकी?
आपकी अगिनती है, हमारी अगर मांग पूरी नहीं होगी तो आगे हम संघर्ष करेंगे, धरना देंगे। ये सारा दिन यही हूँ आज। हाँ, सारी दिहाड़ी हैं, सुबह से 9-10 बजे से आए हुए हैं, क्योंकि 10 बजे टाइम दिया गया था कि कमिश्नर साहब आएंगे, आप उनसे बात करिए, अपना बात रखिए, और कमिश्नर हमारे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो दफ्तर छोड़ के फरार हैं। ठीक है, थैंक यू। जी सर, मैं एक बोलना चाहता हूँ ये बात, जैसे कि अभी हमने, मेरा नाम मोहम्मद कैसर है, मैं जूस का काम करता हूँ, मुझे 20 साल के लगभग मोहाली में काम करते हुए। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि हम लोग रेडी वाले अनलीगल बता रहे हैं, कारपोरेशन जब चकता है तो हम लोगों का मतलब बोलते हैं तुम अनलीगल खड़े हो। ठीक है, अगर हम अनलीगल है तो जो 4 साइडें अभी जगह दे रहा है वो किसको ले दे रहा है, किस चीज़ के लिए दिया जा रहा है वो रेडी? अगर हम अनलीगल है तो वहाँ भी तो अनलीगल ही है ना, फिर वहाँ क्यों बैठाया जा रहा है हमें? वो भी तो गवर्नमेंट का ही जगह है, वो तो हमारा जगह नहीं है। अगर हम लोग लीगल है तो जहाँ हमारा रोजगार चलता है, मेरा कहने का मतलब यही है, जो जहाँ बंडल बनी, जैसे कि मार्केट के अंदर जहाँ पे बनी आगे पीछे जगह है, हम लोग वहाँ बैठाया जाए। आप एक सीधी सी बात बताइए बताइए। कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आने के बाद ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि इससे पहले भी देखे थे आप? नहीं, ये दिन तो भाई आम आदमी पार्टी की सरकार में हमें देखना पड़ा। आपके कार्ड जो बने हैं वो जेन्युइन है, उसके क्योंकि फार्म की पैसे भी लिए गए थे? जी बिल्कुल ले गए थे, बिल्कुल ले गए थे। जो फीस कार्ड बनने का जो फीस है वो लिया गया था, कितनी फीस दी थी? उस टाइम 100 रुपये का फीस था कार्ड बनाने के तो लिए। कितने इस वक्त यहाँ पे लोग खड़े होंगे अंदाजा यहाँ पे आपके सामने लगा लो, आप 300 के आसपास तो है ही है। तो 100 रुपये 30,000 रुपया क्या हुआ है? बिल्कुल जी बिल्कुल, 993 कार्ड बनी हुई है, उसके अंदर लगा। वैलिड है आपके? बिल्कुल जी वैलिड है, बिल्कुल वैलिड फिर क्यों उठा रहे हैं? क्या कारण? ये वही तो मैं आपसे कहना रहा हूँ। मैं अभी मीडिया के माध्यम से मैं भी ये कहना चाहता हूँ आपसे, अगर हमारा कार्ड अगर हम इलीगल है तो हमारे कार्ड क्यों बनाया गया? अच्छा, हमारा अगर कार्ड बनाया गया, फिर अगर हम इलीगली आप कह रहे हो हमें आप, तो हमें जगह क्यों दिया जा रहा है? हमें क्यों दूसरा जगह बैठाया क्यों जा रहा है? मेरे कहने का मतलब ये है। बिल्कुल जो ਅੱਜ ਮੈਮ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀ ਫੜੀ ਆ ਆਪਣਾ? ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸੱਤ ਫੇਸ। ਸੱਤ ਫੇਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਰਨਾ ਪੜਦਾ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਸਮਾਨ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਸਟicker ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਸਟਮਰ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ? ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੱਪੜਾ। ਜਿਹਨੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਲ ਪਾਣਾ ਲੋਕਲ ਪਾਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਾਣਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੀ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੋਰੂਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲੇ, ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਇਸ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੱਕੇ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲੇ 80% ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਂਦਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਹਟ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਲੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, 2 ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੀਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ 2 ਵਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਏ ਐਮਐਲਏ ਮਿਲਣ ਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? तो वही तो सोचो वाली गल है ना, किराए ते मकान है, किराया भी देना, मकाना तो कहना मकान खाली करो, उन्होंने तो ना देखना जितों मर्जी पैसा लिया। हुण बैंक दी किस्तां लोन लिते हैं, वो सारा खराब हो गया, साडा तो रिकॉर्ड खराब हो गया ना साडा तो। ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਰਸਤਾ ਹੈ? रास्ता सानू भी कोई नहीं दिखाई दे रहा, सही है कि ना अगे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यही कुछ कर सकते जो कमिश्नर मैम करेंगे तो सब कुछ हो सकता है, रिक्वेस्ट ही कर सकते ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ देखो असा रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। हाँ असा रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना, असा और कुछ नहीं करते। हुण सारे आए सारे आराम नाल ही गल कर रहे हैं ना, कोई किसी नारेबाजी नहीं की, कुछ नहीं किया। एक ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ? ਇਹੀ ਹੈ ਲੇਡੀ ਬੀਇੰਗ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਬਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਵੇ ਫਰਜੇ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਡਾਕੇ ਡਾਲਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਟੱਬਰ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਚੋਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਰ ਕਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਮਾਓ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਨ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੱਦੀ ਆਈ ਨਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਤਕਲੀਫ ਆਮ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਠੀਕ है, थैंक यू। मुकेश गुप्ता नाम है सर मेरा। मैं 2-2.5 महीने से रेडी बंद किया हूँ। 5 बच्चे हैं हमारे, मतलब समझ लीजिए रोटी के लिए बेहाल हैं, कामकाज बंद है, हमें परेशान किया जाता है। सरकार से यही गुजारिश है हमारी कि हमारा कोई हल करे, या नहीं करते हैं तो हमारे को कोई काम दें, हमारे को कोई काम दे कि हमारे बाल बच्चे पलें। ठीक है। जैसे एक चीज़ बताइए कि गुप्ता जी, आप रेडी जो है यहाँ लगाते हो, मोहाली में रहते भी पंजाब में ही हो, मोहाली में रहते हाँ जी, हो? मैं आपका वोटर कार्ड सब बना कुछ हुआ है? बना है सर, मैं आपने दिखा रहा हूँ सरकार आपको। भी चुनने के लिए मतलब योगदान दिया है ये जी। जब से आम पार्टी आई है तब से हम बहुत परेशान हैं सर। अच्छा। हमारे बाल बच्चे 3 महीने का किराया रुका हुआ है। हम इतने परेशान हैं कि बस अब हम लोग मरने वाले हो गए हैं। ये सब कुछ हमारा पंजाब का है सर। हमारा बाकायदे यहाँ पे 1200 रुपये लगे हैं लाइसेंस बनाने के। ये लाइसेंस है हमारा। तो जब हमें परेशान करना था तो हमें लोन क्यों दिया? हमारा रिकॉर्ड खराब कर रहा है। आपका लोन चढ़ा हुआ है? चल ही रही होगी। लोन हमारा क्लियर हो गया है, मान लो हमारा तो क्लियर हो गया है, जिसका है वो बेचारा कहाँ जाएगा? उनकी तो किस्त जाएगी। हाँ? किस्त तो जाएगी। अगर कमेटी वाले परेशान कर रहे हैं, जब लाइसेंस बनाए, जब नहीं लगाने देना था तो लाइसेंस क्यों बनाया? हमारे को लोन क्यों करवाया? हमारे को शुरू में भी 600 रुपये लिए गए, बाकायदे फ़ोटो खींचे गया, 100 रुपया लिया गया। कम से कम 10 बार यहाँ आए, हम फ़ोटो कॉपी लाए। पंजाब के मुख्यमंत्री से आप क्या अपील करना चाहोगे इस तरह के हालात में? आप सर हम यही सरकार से अपील करना चाहते हैं कि हम सारे गरीब भाइयों को जीने खाने दें, रेडी लगाने दें। हमारे बाल बच्चे रोड पे आ गए हैं। ठीक है, अगर कोई मतलब कि हमारे घर में चाहे किसी के घर में कोई अगर ऐसी हादसा होती है तो इसका जिम्मेदार सरकार होगी, आम आदमी पार्टी की सरकार होगी और कमेटी वाले होंगे। ठीक नाम बताओ। रूपचंद नाम है सर, केले की रेडी लगाता हूँ 2 फेज में। ना कोई हमारा जो है वहाँ ऑब्जेक्शन है, कोई जो है शोरूम वाले ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, ना कोई वो है। आज तक हमारा कोई वहाँ वो नहीं है। दूसरी बात, हमारे बच्चे बड़े बड़े हैं, कोई बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, कोई बीए सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है। 2 बच्चे हैं सर, केले की रेडी है, मौसम ये हाल है। 3 दिन से 1 रुपया हमने कमाया नहीं है। बच्चे हमारे रोड पे आने हैं, फीस भरने हैं, फीस के लिए पैसे नहीं है। हम जाए तो जाए कहाँ? पंजाब सरकार से हमारी गुजारिश है कि हम लोग को कम से कम जीने खाने दें। कई 30-35 साल हो गया हम लोगों को यहाँ आके रह रहे हैं। ये हम बहुत परेशान हो गए हैं। तो जिस तरह आप कह रहे हो कि आपका लाइसेंस बना हुआ है। हाँ जी सर, लाइसेंस बना हुआ है। आप लोगों से फीस लेती है, बकायदे आपको रोड मैप बना कर देती है, तो आप पैसे देने के लिए बिल्कुल देने के लिए भी तैयार है सर। हम उसके धन्यवाद भी देने के लिए तैयार है सर। हमारा पेट तो पल रहा है कम से कम। जैसे चंडीगढ़ में कट रहा है वैसे हमारी भी काटी जाए, 1000-1200 जो लग रहा है हम देने के लिए तैयार है। अगर कमेटी वालों को ये लगता है कि भाई यहाँ तकलीफ है, जैसे मान लीजिए रोड किनारे में तकलीफ है, तो हमसे एक बार बोले कि भाई आप थोड़ा यहाँ मत लगाओ, थोड़ा साइड हो जाओ। हम साइड भी लगाने को तैयार है। हर चीज पे हम सर जी उनकी हर बात हम मानने के लिए तैयार है। जहाँ उनको दिक्कत है बोले भाई तुम्हें हमें यहाँ दिक्कत है, आप इधर आओ, हम उधर चले जाएंगे। दूसरी बात सर जी, मान लीजिए एक सरकार कहती है भाई लोन लो, हम यहाँ लेने नहीं आए थे, हम लोग खुद ये लोग बुला के लोन लिया। 10,000 दिए एक बार, 10,000 पूरा हुआ, फिर 20,000 दिए। 20,000 मान लीजिए अब 2 महीने से लगभग सारे लोग बैठे हुए हैं। तो आखिर जब किस्त जाएगी नहीं, हम किस्त कहाँ से भरें? जब बैंक में हम कमाएंगे डालेंगे तभी होगा ना। तो सर हम कहाँ से भरेंगे? एक सरकार कहती है कि भाई ये लोन लो, दूसरी कहती है चलो पज लो। हमारा आखिर हम जाएं तो जाएं। हमारी बात बढ़िया से पहुँचाइए। रूम बेटे मेरे पे 3 बेटी हैं और मेरा घर वाला बीमार रहता है, सांस की बीमारी है। 6,500 की रेडी लगाते हो आप? बच्चों के कपड़ों की। अच्छा, 7 फेस की मार्केट में जी। अब बताओ 20,000 का लोन भी हो गया, अब मैं कहाँ से दूंगी? कोई बेटा भी नहीं मेरे पे बेटा। 3 बेटी, तीनों की शादी कर दी मैंने। अब बताओ घर वाला का इलाज कहाँ से करवाऊँ? मकान का किराया कहाँ से दूँ? लोन कहाँ से दूँ? बताओ कहाँ से दूँ? खुद बिक कर दूंगी मैं? खुद बिक जाऊंगी सरकार के पीछे? बताओ मैं कहाँ से दूंगी? लगता क्या है कि कौन कर रहा है ये सारा कुछ? अब का पता कौन कर रहा है? कुछ पता भी तो ना लगता, कुछ पता भी तो ना लगता। उस दिन फड़ी उठाई बेटे, उस दिन मैं 30,000 का सामान लेकर आई थी उधार। और वो का सामान आप उधार लेकर आए थे? उठा लेके? नहीं, सारा घर में पड़ा है बेटी। अच्छा, उस दिन बेटे मैंने फड़ी नहीं लगाई, उससे फोन आ गया कि आज फड़ी नहीं लगेगी। वो 30,000 का सामान बेटे मेरे घर पड़ा है। और आप झूठ नहीं मानो ना, मेरे घर चल के देख लो, 7 फेस में रहती हूँ मैं, एच क्वार्टरों में। बताओ
सर लोन देते समय, मैं मनतोष चौधरी बोल रहा हूँ, 7 फेस में जूस की रेडी लगाता हूँ। लोन देते समय पूछा गया था मेरे से, ये लोन आपको इसलिए दिया जा रहा है, लोन का नाम है स्वनिधि नरेंद्र मोदी योजना की तरफ से लोन पास हो रहा है। आपको लोन इसलिए दिया जा रहा है कि आपको कारोबार में थोड़ा बहुत जो कोरोना वायरस में कमी हुआ था वो पूरा हो जाए, ताकि आप अपने बाल बच्चे को पाल सके, अपना रोजगार धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ा सको। इसलिए मान लीजिए सर लोन मिला हम लोग को, चलिए एक बार 10,000 मिला, एक साल में हम लोग टाइम से चुका दिए, 2 रोटी कम खाते थे पर लोन टाइम से भरते थे। हम लोग को टेंशन था कि सरकार जब दे रही है उसको टाइम से भरो ताकि हमारा भी रोजी रोटी चले, हम आगे बढ़े। बोले थे आप टाइम से भरोगे अगली बार फिर 20,000 मिलेगा, 20,000 भरोगे टाइम से फिर अगली बार मिलेगा 50,000। सर हम लोग 10,000 भर दिए, उसके बाद 20,000 मिला, 20,000 भी भर रहे हैं। अब बताइए सरकार एक तरफ से लोन दे रही है कि अपना कारोबार आगे बढ़ाओ, अपने बाल बच्चे पालो, और दूसरे तरफ रेडी चक्की जा रही है, तो सर हम कहाँ से भरेंगे? वो तो मान लीजिए ये तो सर मान लीजिए सरिया में गलत कार्रवाई हो रहा है। सर सामान ले जाते हैं, चलिए चक के ले गए, अलग की बात है, गड्डी पे लोड करते हैं आराम से, और हम लोग देखते हैं चलिए हमारे सामने आराम से लोड कर लिया गड्डी पे, और स्टोर में ले जाने के बाद या तो जेसीबी से उतार देते हैं, नहीं तो ऊपर से सीधे रेडी नीचे छोड़ देते हैं। चाहे नवी रेडी ये नहीं देखते नवी है या पुरानी है, चाहे जैसे मर्जी हो। मेरा तो है नहीं, मेरे जेब से पैसे लगा नहीं है, अगला गरीब आदमी कहाँ से लाया इतना नहीं सोचते हैं, गरीब आदमी कहाँ से लाया सर? की पावर आपके पास है नहीं, हम कुछ बोलते नहीं है, डर से हम तो हाथ जोड़ते हैं, बाबूजी थोड़ा आराम से रखना, आराम से उतारना, छोड़ दो, पहले तो हाथ जोड़ते हैं बाबूजी छोड़ दो प्लीज, हमारे बाल बच्चे कैसे पलेंगे, छोड़ दो। लेकिन वो लोग कहते हैं हम कुछ नहीं करेंगे, ऊपर से आदेश है कि कोई सामान नहीं छोड़ना है। चलिए फिर हम लोग रो रो के गिला के थक जाते हैं, फिर रेडी हमारा लोड कर लेते हैं। लोड करने के बाद जब स्टोर में ले जाते हैं तो ऊपर से जितनी मर्जी गाड़ी ऊपर हो, नीचे कोई रोकने वाला नहीं होता, ऊपर से सीधे डायरेक्ट छोड़ देते हैं। नवी रेडी का हमारा बुरा हालत, 4 दिन 5 दिन दौड़ते हैं, छूटती नहीं है जल्दी, उसके बाद मुश्किल से छोड़ भी देते हैं सर, उसको ठीक कराने में कम से कम 2,000-3,000 रुपये लगता है, फिर हम कर्ज निकाल के उसको ठीक कराते हैं। बताइए इस परेशानी में अगर उलझे रहे हम, तो सरकार जब लोन देते समय बोली है ये लोन आपको स्वनिधि नरेंद्र मोदी योजना की तरफ से मिल रही है, तो लोन हम लोग कैसे चुकाएंगे? अपने बाल बच्चे पालेंगे कि लोन चुकाएंगे कि क्या करेंगे? ऐसे सरकार हम लोग को तंग करेगी। तो सर मान लीजिए कोई यूपी बिहार से आया, यहाँ पे पंजाब के लोग कहते हैं कि यूपी बिहार आदमी को बहुत सेवा करते हैं, क्या सेवा करते हैं? जब यहाँ से हम लोग को भगा देंगे तो फिर अपने गांव जाएंगे। हमारी सरकार तो इतना कमज़ोर है नीतीश कुमार जी की, हम लोग को कोई सहायता नहीं करता, तभी हम लोग यहाँ पे आए हैं। अगर यहाँ के सरकार भी भगा देगा तो मजबूर हैं, क्या करेंगे? 2 रोटी कि अगर आप वापस जाते हो तो पंजाब एक बार फिर बदनाम होगा। हाँ जी वो तो होना ही है सर, हम खुद हम तड़प रहे हैं, जब 2 रोटी के लिए तड़प रहे हैं तो कम से कम अपने गांव जाएंगे तो वहाँ पे कोई छोटा मोटा बाल बच्चे तो पालेंगे, यहाँ भूखे मर रहे हैं। 2 महीने का रूम का किराया कर्ज चढ़ा हुआ है ऊपर, रूम मालिक रोज आके डंडे दे रहा, भाई कहीं से लो, मैं नहीं जानता हूँ, रेडी लगाओ जो मर्जी करो, आप मेरे किराए दो, जाने भी नहीं दे रहे हैं, कमरा खाली भी नहीं कर रहे हैं, अब कैसे भागेंगे सामान लेके सर? हमारा मजबूरी है सर। आप तो प्रवासी हो, लेकिन यहाँ के बहुत सारे हाँ जी पंजाबी भी यहाँ खड़े हैं। हाँ जी वो भी मध्यम वर्ग से हैं। हाँ जी सर, उनकी भी तो है, उनकी भी तो है सर, वो तो बात ठीक है सर। एक सर हाँ उनकी भी समस्या रह गया, हम लोग को कहे तो लोकल है, उनका किराया वराया नहीं देना, चलिए मान लियो अपना गुजारा कर लेंगे, हम लोग को सब कुछ देना है सर। बाल बच्चे भी है, मेरे एक गुड़िया है, 2 छोटे बच्चे हैं, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इस हालात में जैसे मैं धक्के खा रहा हूँ रोड पे, मेरे बच्चे ना धक्के खाए, किसी तरह 2 रोटी कम खाऊं, 2 दिन भूखे रह जाऊं, लेकिन बच्चों को पढ़ा दूं। आने वाले समय में मेरे बच्चे कोई आखिरी सवाल है। हाँ जी सर, कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, हाँ जी सर, में इनकी अपनी सरकार, हाँ जी, मैं दिल्ली पार्टी के सुप्रीमो जो है केजरीवाल जी हैं। हाँ जी केजरीवाल गरीबों का मसीहा। हाँ जी सर, दिल्ली में हमने बहुत बढ़िया किया। हाँ जी सर, उनके लिए क्या संदेश देना सर? मैं दिल्ली में भी कई बार जाता हूँ मशीन वगैरह, हाँ जी सर, मशीन वगैरह लाने के लिए दिल्ली में जाता हूँ। दिल्ली में ये देखता हूँ रेडी फड़ी वाले एकदम अपने लगे हुए हैं, अपना लाइसेंस रेडी पे लगा रखे हैं। उनसे मैं पूछा पाजी आप लोग को रेडी फड़ी उठाई तो नहीं जाती है? वो बोले कि नहीं भाई मेरा रेडी फड़ी हम लोग का महीना का पर्ची कटता है, पैसे जमा करते हैं, एकदम आराम से दुकान लगाते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो वहीं हम लोग चाहते हैं सर हमारी भी सरकार पंजाब में ऐसे कर दे, हम लोग पैसे देने के लिए तैयार है, फीस 1000 रुपये ले, जिनका ज़्यादा काम चलता है हाँ जो भी है फीस हमारा जायज़ रख दे महीने का, हम लोग देने के लिए तैयार है। और हमारा सामान सर नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो हम लोग मजबूर होके आत्महत्या कर लेंगे, नहीं तो घर चले जाएंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
ये सर देखिए आप, ये जो तंदूरी लगाते हैं रोड पे जो बेलते हैं, इसके अंदर आग जला के और तंदूरी बनाते हैं, वो भी चक के ड्राम लाके इसको सजाया गया है ताकि कोई बाहर से अफसर आए देखे कितना अच्छा सजा हो गया। हम लोग खुद अपने जेब के पैसे के खरीद के लगाए हैं। ये आम जनता, ये रेडी फरी वाले का सारा सामान है सर। ये जो ला के यहाँ पे सजाया गया है ताकि बाहर का अफसर आए देखे का यहाँ कितना रौनक है यहाँ पे। ये नहीं